کمیونٹی ریڈیو اونتیپورہ، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن پیش کرتا ہے پروگرام پیش قدم پیش قدم پیش قدم۔ صبح امید ضیاء ہے جامعہ اسلامیہ، مشعل نور ہدا ہے جامعہ اسلامیہ۔ السلام علیکم، میں ہوں ہنا تاج اور میں ہوں سجاد بٹ۔ پیش قدم کے ہمارے آج کے شمارے میں کشمیر کے کانی شال کی شان کو بحال کرنے کے لیے گل انار سوسائٹی سرگرم۔ صحافی دانش اسماعیل کے ساتھ ایک انٹرویو۔ رواں مہینے کی 1 تاریخ کو منایا گیا ورلڈ ہیبیٹیٹ ڈے۔ ایک زمانے میں وادی کشمیر کے کانی شال کو عالمی شہرت حاصل تھی۔ اس کاروبار سے وابستہ لوگ ہر طرف سے مشہور تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کانی شال اپنی پہچان کھو بیٹھا، یہاں تک کہ کئی بار ایسا محسوس کیا گیا کہ کشمیریوں نے اس صنعت کو جیسے بلا ہی ڈالا۔ لیکن گزشتہ چند برسوں سے اس کاروبار میں نئی روح پھونکنے کے لیے سوسائٹیاں میدان میں کود پڑی ہیں۔ سنتے ہیں اسحاق بٹ کی یہ کہانی۔ کشیر سے پنہ مر منظر کن پور دنیا مز مشہور، کشیر سے فطری حسن و جمال ست مالا مال، کوہ بال چس گاردس، نئی تو میدان چس پھیرنس تھورنس، ناگ تو دریاب چس صبح شام خدمتس، گل تو گلزار چس پچس لچس ہاونس، جنگل تو سبزار چس تراوت بخشنس۔ امہ کشیر ہند اخ شاہکار اس کانی شال، امیک اس پور دنیا مز چکچاو، ون گو وقت چن گردشن مز پکان پکان، یہ دب زی کانی شالک وجودی ختم، اما پوز تمہ وقت کارگر اس اطمینان بخش آمدنی کماوان۔ پتہ چھ سوال زی تیل کیاز گو کانی شالک چکچاو، وقت چن گردشن ہندس دریابس مز ویر، اس کر کا سجاد احمد وانین سی یم زن گل انار کانی شال سوسائٹی ہند روح روان چھ۔ اصل باسو کانی شال ہتن ختم سپدن یہ کشیر مز اس کر اخ لوکل ویور یم یمو یہ ہیچمت کورمت تم ان اس تو پتہ کر اس فریم اخ سوسائٹی اس 1994 مز کر اس امیک کاز اس صرف ریوائول آف کانی شال۔ اس ام برونٹ مطلب بیسکلی اس کانی شال ختم سپدیمت ویلی مز سو ریوائو کورمت، ون ات مز کی تم ڈیزائن یم واریاہ پرٲنۍ ٲسۍ یم نہٕ أسۍ ہٮ۪کان پانہٕ یہ سا یہ کٔرِتھ ریوائو کینٛہہ۔ تمہ خاطر ٲس اَسہِ فاینانشل اسسٹنس ضرورت کینٛہہ، پتہٕ کوٚر اَسہِ ٹیکسٹایل منسٹری سۭتۍ تمن سۭتۍ وابستگی تہٕ تتھ منٛز کوٚر تمو اَسہِ مدد تم ڈیزائن ریوائو کرنس منٛز تہٕ کٔرۍ اَسہِ تم 10 ڈیزائن ریوائو تقریباً۔ تمن منٛز ٲسۍ واریاہ ڈیزائن، گل بنفشا اوس، تلسی اوس، چمبیلی اوس، یہ سا جوزفین اوس، اتھے کٔنۍ ٲسۍ واریاہ ڈیزائن ٲسۍ تم تہٕ پتہٕ کٔرۍ تم تمہِ ساتہٕ ٲسۍ ییٚتہِ اَسہِ چیف منسٹر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ریوائو کٔرِتھ دوٚپ تمو دوٚپُکھ ہے تُہۍ کٔرِو سۄ کٲم، تُہۍ کٔرِو سا یِمو منٛز 4 ڈیزائن کم سے کم سبمٹ ییٚتہِ سری پرتاپ سنگھ میوٗزیم۔ پتہٕ کٔرۍ اَسہِ تم 4 ڈیزائن تتہِ سبمٹ۔ تتہِ چھُ شگفتہ چھُ، تلسی چھُ، گل بنفشا چھُ تہٕ بیٚیہِ چھُ تتہِ جوزفین، یم 4 ڈیزائن کٔرۍ اَسہِ سبمٹ تتہِ۔ مطلب یم ٲسۍ اینشنٹ ڈیزائن، یم ٲسۍ پرٲنۍ مغل ٹایمٕکۍ ڈیزائن یُس ونکیٚنس امپاسبل اوس بناوُن۔ یم فادر ٲسۍ تِم ٲسۍ غلام محمد کانہما، تمو کٔر کٲم پتہٕ تِم ٲسۍ 60s منٛز ٲسۍ تِم پالٹکسس منٛز، تِم ٲسۍ MLA تہٕ تِمو ترٛوو یہِ پالٹکس أکِس سایڈس، یہِ اوس آلریڈی سانہِ فیملی منٛز فرام جنریشنز۔ تِمو کٔر کٲم، تِمو دوٚپ بہٕ ہسا کرٕ یِہوے کرافٹ بیٚیہِ رِوایو یُس یہِ ختم چھُ سپدیمُت۔ کوٚر تِمو پتہٕ وارٕ وارٕ لۄکُٹ اکھ یوٗنٹ کھڑا، تتھ منٛز أنِکھ یہ سا یہِ کٲرۍگر، تتھ منٛز اوٚنُکھ تتہِ اوس تمہِ وِزِ اکوے ووور یُس ماسٹر کرافٹس مین یُس تمہِ وِزِ اوس، تٔمِس میلیو راشٹرپتی ایوارڈ تہِ تہٕ غلام قادر رنگریز تٔمِس تہِ میلیو پتہٕ راشٹرپتی ایوارڈ تتھ منٛز۔ سُہ اوٚنُکھ، تٔمۍ ہیٚچھنٲے، گٔے 10-12 لڑکہٕ تیار، وار 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 ونکیٚنس چھُ خۄدا سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ تھرٛوٗ آوُٹ ویلی یہِ ونکیٚنس چھِ کٔشیٖر پکان کانی شالس پٮ۪ٹھ۔ مطلب تِمن چھُ اتھ سۭتۍ 65 پٮ۪ٹھ کٲشِر پٲٹھۍ وابستگی، پالٹکس یُتھُے تِمو ترٛٲو تہٕ تِمو کوٚر یہِ رِوایو۔ پتہٕ کٔر کٲم، پتہٕ مرحوٗم شیخ محمد عبداللہ یتھ منٛز تِمن ایپرِسیشن کٔر تمہِ وِزِ، تِم لیٹر چھِ تِہنٛز ایپرِسیشن لیٹر چھِ گورمنٹ آف انڈیا کہِ طرفہٕ، ییٚتہِ ڈاکٹر فاروق عبداللہ، باقٕے یِم منسٹرز ٲسۍ یِمن مطلب اتھ سۭتۍ وابستگی، یِہنٛز فیملی اتھ سۭتۍ وابستہٕ آسہٕ، مطلب یِم امہِ کارُک مطلب زانان ٲسۍ یہِ کیاہ چھُ، تِمو دِژ اتھ منٛز ایپرِسیشن، تِمن کوٚرُکھ تو مطلب حوصلہٕ افزٲیی وار 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 ونکیٚنس چھِ پوٗرٕ کٔشیٖر منٛز پھٔہلِتھ۔ 94 منٛز کوٚر نہٕ اَسہِ بیٚیہِ رِوایو، 94 منٛز کٔرۍ اَسہِ بیٚیہِ ڈِزاینٕز، یِم پینڈنگ ڈِزاینٕز تِمن باسے نا یِم نسا ہٮ۪کن نہٕ سپدِتھ، مطلب یُس تِہنٛدِس ماینڈس منٛز اوس نسا یہِ ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ، تَمے موٗجوٗب ژھٲنٛج تِمو فاینانشل اسسٹنس، کیازِ کہِ
پان ہیکان تم تیوتہ برداشت کرت تک ہیوج اماؤنٹ گژھان خرچ 20-30 لچھ رۄپیہِ ٲسۍ گژھان خرچ تمہِ وِزِ تِم ہیکان نہٕ پنٕنۍ انویسٹمنٹ کٔرِتھ پتہٕ کوٚر تِمو ٹیکسٹایل منسٹری سۭتۍ وابستگی ٹیکسٹایل منسٹری دوٚپ تِمن أسۍ ہسا دِمو فاینانشل اسسٹنس کٲنی شال چہِ تواریخ متعلق چھِ سجاد صٲب ونان اتھ چھِ واریاہ زیٖٹھ ہسٹری مطلب اکہِ وقتہٕ چھُ اوسمُت پوٗرٕ سینٹرل ایشیاہس منٛز کٲنی شال سٲرسٕے سینٹرل ایشیاہس منٛز چھِ ٲسمٕتۍ بناوان مغل پیریڈس منٛز چھِ زیادٕ مطلب سپدیومُت ییٚتہِ کٔشیٖر کُنتھ اتھ دپان چھِ زین العابدیٖنس وقتس منٛز اوس واریاہ اصلی چھُ آمُت کٔشیٖرِ اوٚنمُت چھُ زین العابدیٖنن یہِ تہٕ مغل پیریڈس منٛز تہِ چھُ اوسمُت سکھ پیریڈس منٛز تہِ چھُ اوسمُت پتہٕ سپدیو یہِ وارٕ وارٕ دپان ییٚلہِ یہِ عروٗجس پٮ۪ٹھ اوس تتھ وقتس منٛز دپان تمہِ ساتہٕ یُس وووُر اوس سُہ ہسا اوس جِجیٖرِ بران آبہٕ بدلہٕ دۄد ادٕ اوس چٮ۪وان تمو مطلب تیوٗتاہ چھُ اوسمُت یہِ کم پیٖکس پٮ۪ٹھ تہٕ پتہٕ سپدیو وارٕ یہِ زوال پذیٖر سپدیو وارٕ ختم امہِ موٗجوٗب زِ مطلب تِتھۍ ڈِزاین ہیٚتِکھ تِمن کٲرگرن بنٲیِتھ زِ دوٚیِم اگرے تِم سُہ بناوہن شال تِمن ٲسۍ دپان ہے یہِ أمِس ژھٕنِو سا اتھ ژٔٹِتھ بس یہِ بنیو تہٕ بنیو یِتھے کٔنۍ یہِ چھُ آلموسٹ سٹوری لایک تاج محل مطلب میانہِ خٲطرٕ ہسا بنوو أمۍ یہِ 5 ؤرین 4 ؤرین منٛز وۄنۍ ہسا گوٚژھ نہٕ بنُن یہِ بیاکھ شال یُتھ مطلب یہِ چھِ امِچ ہسٹری پتہٕ چھِ سپدیومُت مطلب یِتھے کٔنۍ وارٕ ترومُت چھُ یہِ کارٕے وووریو سپدیومُت چھُ پتہٕ زوال پذیٖر پتہٕ ٲسۍ مطلب واریاہ سپیڈس اوس پتہٕ مےٚ اوس اگر أسۍ گوٗگلس منٛز گژھو تتھ منٛز کرو کانی شال اینٹر سٲرٕے ہسٹری نیرِ اتھ چھِ ہسٹری زِ نپولین اوس نپولین بوناپارٹ تٔمِس ووٚن جوزفیٖن یۄس تٔمِس بلاوُڈ ٲس تِمو ووٚن تٔمِس دوٚپہس بہٕ ہسا کرٕ ژےٚ سۭتۍ تیٚلہِ خانٛدر شرط تھوہس بیٹ یہِ چھِ ہسٹری بہٕ ہسا کرٕ ژےٚ سۭتۍ تیٚلہِ خانٛدر ییٚلہِ ژٕ مےٚ امیِکۍ 2 جورٕ گفٹ کرکھ کانی شال فرام کشمیٖر تمہِ ساتہٕ چھُ اننومُت پتہٕ اِجپٹ پٮ۪ٹھ نپولینن پتہٕ چھُنہٕ دیُتمُت جوزفیٖن گفٹ یتھ پٮ۪ٹھ زِ اکھ مطلب ڈِزاینُک ناوٕے چھُ أکِس ڈِزاینس چھُ جوزفیٖن ڈِزاینٕے ناو مطلب یُس خاص اکھ ڈِزاین یُس تٔمِس زیادٕ پسنٛد اوس یا راج ترنگی منٛز چھُ امیُک ذِکر یا آینہِ اکبریس منٛز چھُ امیُک ذِکر تُزکے جہانگیٖریس منٛز چھُ امیُک ذِکر اکبرن چھُ اتھ چیٖزس ناو اوسمُت تھوٚومُت پرم نرم لایک رِور یِتھے کٔنۍ پننہِ حساب پرٛٮ۪تھ کُنہِ مطلب سکھ پیریڈس منٛز ڈوگرا پیریڈس منٛز یِم تہِ پیریڈ آیہِ تِمن منٛز چھُ اوسمُت یہِ را مٹیٖریل چھُ امیُک لداخ پٮ۪ٹھ پشمیٖنا اتھ چھُ سمپلی پشمیٖنا ضوٚرتھ اسہِ اتھ چھُنہٕ اتھ تیوٗت بیٚیہِ کینٛہہ ضوٚرتھ وۄنۍ ٲسۍ بناوان مطلب توسس منٛز گٔے لیٹسٹ اتھ منٛز یہِ کیازِ کہِ توسہٕ آو بین کرنہٕ اس لیے چھُ توسس منٛز چھُنہٕ بنان خاص توسس چھو تۄہہِ پیی تہٕ اتھ اوس سُہ چیٖروٗ اوس جانور تٔمِس ٲسۍ ماران یِم تٔمِس ٲسۍ اِکوٹے کڑان سُہ توسہٕ سورُے ییٚلہِ زن تہٕ برونٛٹھ اوس تٔمِس اکھ پروسیٖجر اکھ سُہ اوس یِمو زنڈو مٔنٛزۍ پھیران سُہ تٔمۍ سُنٛد توسہٕ اوس گژھان بنٛد یِمن زنڈن منٛز پتہٕ ٲسۍ گژھان وارٕ یِم لوکل تِم ٹِبیٹِینز ٲسۍ یا لداخ کٮ۪ن یِمن اپر ریجنس منٛز روزان ٲسۍ تِم ٲسۍ کران سُہ توسہٕ کلیکٹ گُلہِ انار کٲنی شال سوسایٹی چھِ اکھ مِشن زِ کٲنی شال گٔژھ بیٚیہِ تِتھے کٔنۍ کارڈ کڑٕنۍ یِتھ کٔنۍ زن یہِ برونٛٹھمِس وقتس منٛز اوس کٔڑِتھ برونٛٹھ کُن چھُو تۄہہِ پانے تران فِکرِ زِ کٔشیٖر چھےٚ وٕنکیٚنس کٲنی شالس پٮ۪ٹھ سورُے دارمدار وٕنکیٚنس چھُ تقریٖبن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گرٕ زانان کٲنی شال یا تھرٛوٗ آوُٹ ورلڈ چھُ وٕنکیٚنس کٲنی شال زانان اَسہِ چھُ فخر محسوٗس پننہِ جایہِ یُتُے یوتن زِ مطلب یُس والدِ محترم سُنٛد خواب اوس سُہ گوٚو پوٗرٕ یُس تِمن خواب اوس زِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گوٚژھ کٲنی شال زانُن کیازِ کہِ کانہِ ہُم کٲنی شال تہٕ کانہِ صٲب یِم ٲسۍ لِنکٕڈ وِد تمے موٗجوٗب مطلب أسۍ تہِ چھِ یژھان مطلب یہِ گوٚژھ واریاہ تھٔدِس پیمانس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ پھٔہلُن یُتُے یوت زن کرٕ بہٕ رُکیس ییٚمِس کٲشرِس نہٕ یہِ پتہ آسہِ تہٕ سُہ ہیٚکہِ اتھ مُتعلق نیٹس پٮ۪ٹھ سٲرٕے ہسٹری امِچ موٗجوٗد اتھ مُتعلق چھِ کِتابہٕ تِمن کِتابن منٛز گژھن امِچ ہسٹری پٔرِنۍ اتھ چھِ بڑٕ مزٕدار ہسٹری مطلب یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ اوسمُت رِشوت تہِ یِوان دِنہٕ انگریز یِتھُے ہندوستانس منٛز آے تِمن کِتھ کٔنۍ چھُ اوسمُت یِوان یہِ رِشوت دِنہٕ تہٕ تِم کِتھ کٔنۍ ٲسۍ یہِ ایز برایب ایکسیپٹ کران پتہٕ کِتھ کٔنۍ ٲسۍ تِم نٮ۪بر سوزان سامعین آج کل عازمین حج دنیا کے کونے کونے سے سفر محمود پر روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ حج بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب ہوں گے. وادی کشمیر سے بھی عازمین حج کے قافلے بدستور دیار مدینہ کی طرف رواں دواں ہے. اس برس عازمین حج کے لیے سری نگر کے حج ہاؤس میں خاص سہولت کا انتظام رکھا گیا ہے. خوش آئند بات یہ ہے کہ اس سال براہ راست حج پروازیں سری نگر کے بین الاقوامی ایئرپورٹ سے سعودی عرب اڑان بھر رہے ہیں. اللہ کرے کہ تمام عازمین کا حج قبول ہو. آمین. اس مبارک گھڑی پر سنتے ہیں یہ سلام. سلام آپ پر تاجدار مدینہ، سلام آپ پر تاجدار مدینہ، درود آپ پر شہریار مدینہ. شہریار مدینہ، سلام آپ پر تاجدار مدینہ، سلام آپ پر تاجدار
करम हो करम दोनों आलम के वाली, करम हो करम दोनों आलम के वाली, बुला लीजिए चौखट पे सरकार आली, बुला लीजिए चौखट पे सरकार आली, गरीबों की फरियाद जाए न खाली, गरीबों की फरियाद जाए न खाली, हम आँखों से देखें बहारे मदीना, सलाम आप पर ताजदार मदीना, सलाम आप पर ताजदार मदीना। करम आमिना बी की आंखों के तारे, करम आमिना बी की आंखों के तारे, हलीमा की तन्हाइयों के सहारे, हलीमा की तन्हाइयों के सहारे, नबी आप हैं सारे नबियों से प्यारे, नबी आप हैं सारे नबियों से प्यारे, फिदा आप पर एतबारे मदीना, सलाम आप पर ताजदार मदीना, सलाम आप पर ताजदार मदीना। गरीबों यतीमों के गमखार आका, गरीबों यतीमों के गमखार आका, हर एक उम्मती के मददगार आका, हर एक उम्मती के मददगार आका, एक आलम नहीं आप फक्रे दो आलम, एक आलम नहीं आप फक्रे दो आलम, शहंशाह नक्शे निगारे मदीना, इस वक्त आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश। पेश कदम। सुबह उम्मीदे ज़िया है जामिया इस्लामिया, मशअले नूरे हुदा है जामिया इस्लामिया। पेश कदम में अब हम अपने सामीन की मुलाकात करवा रहे हैं वादी के सरगर्दा फोटो जर्नलिस्ट दानिश इस्माइल के साथ, और उनसे बात कर रहे हैं हमारे साथी इसहाक बुट।
आपका बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे आप सहाफत की दुनिया में कैसे आए? सहाफत के बारे में अगर मैं एक कहूँ, दिमाग में बिल्कुल भी ये कंसेप्ट नहीं था कि मैं सहाफत के मैदान में आ जाऊँ। मेरी जो बचपन की एम थी, माई एम वॉज बिकम अ बस ड्राइवर, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने घर वालों के साथ एक बस में गाँव जाया करता था। वो बस ड्राइवर मुझे उस वक्त एक बादशाह लगता कि ये एक बंदा सारे बंदों को चला रहा है। बचपन में ये दिमाग में छप गया। जो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी गुजरती गई तो मेरे अच्छे घरेलू ताल्लुकात हैं ज़हीरुद्दीन ओवैसी, जो उस वक्त ग्रेटर कश्मीर के एसोसिएट एडिटर। उसने जो मेरा दिमाग देखा, मेरे टैलेंट को देखा, उसने मुझे कहा बेटा आप इस फील्ड में आ जाओ। और चूंकि मैंने ग्रेटर कश्मीर फिर 96 में एज अ ट्रेनी फोटोग्राफर काम किया हबीब नकाश के साथ। सहाफत में इतने सारे फील्ड से आपने फोटोग्राफी क्यों चूज की? हाँ, ये अच्छी बात। फोटोग्राफी इसलिए मैंने की क्योंकि एक रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग करता है वो मुझे नहीं आता। मैं उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था कि मैं रिपोर्टिंग करता, और मैंने फोटोग्राफी को इसलिए तरजीह दी क्योंकि इसमें जी मैंने बाद में जो मेरे रहबर मिले उन्होंने मुझे गाइड किया, बहुत सिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर कोई आता है वो रिपोर्टर बनने की चाहत करता है तो मैं उसको फोटोग्राफर बनाने की कोशिश करता हूँ। जो पहली फोटोग्राफी थी वो बहुत सख्त, क्योंकि जब मैं फोटोग्राफर बना मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट रोल्स होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट पे शूट करता था, डार्क रूम में जाके फिल्म को एक्सपोज कर। नाउ द थिंग्स चेंज। अब क्या है, अभी एवरी सेकंड पर्सन अगर आप कैमरा लेके चल रहा होता है, उसके मुकाबले में और आज के मुकाबले फोटोग्राफी जो है बहुत इजी है। माशाल्लाह भी आप दुनिया की बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ तक का सफर आपने कैसे तय किया? ये सफर जो रहा मेरा बहुत ही जबरदस्त रहा। जब मैं ग्रेटर कश्मीर के लिए फोटोग्राफी करता था तो यहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं इन दिनों काम कर रहा हूँ, थॉमसन रॉयटर्स, उनको एक फोटोग्राफर चाहिए था। उस वक्त जो सबसे छोटा लड़का था वो मैं, और ये टैलेंट को देख रहे थे, और ग्रेटर कश्मीर में मेरा टैलेंट दिख चुके थे लोग, और इन्होंने मुझे ऑफर किया। मैंने 2003 में रॉयटर्स को ज्वाइन किया। यहाँ पर हमारे स्टाफ फोटोग्राफर फयाज काबली, जिसने एक छोटे बच्चे की तरह मुझे पाला, हाथ पकड़कर कंप्यूटर सिखाया, कैप्शन लिखना सिखाया, दुनिया के ममालिक में जाने का मौका मिला। मैंने बहुत सारे चीजें कवर की, फैशन मैंने कवर किया, मैंने बैंकॉक कॉन्फ्लिक्ट कवर किया, मैंने नेपाल कॉन्फ्लिक्ट कवर किया। दुनिया के बेहतरीन कॉन्फ्लिक्ट फोटोग्राफर्स में आपका शुमार होता है। कॉन्फ्लिक्ट का ये है क्योंकि मैं कॉन्फ्लिक्ट जोन में ही काम करता हूँ, और मैंने कॉन्फ्लिक्ट जोन से ही काम स्टार्ट किया। हॉस्टाइल ट्रेन होके आया हूँ, मैंने बैंकॉक में ट्रेनिंग की। उस हॉस्टाइल ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट जोन में कैसे काम करना है। और ये चीजें दिखते दिखते नजर, पता नहीं मुझे लोगों ने कब कॉन्फ्लिक्ट स्पेशलिस्ट बना दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आई ट्राई टू लेवल माय बेस्ट, but I'm not putting myself I'm a good photographer in conflict. आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर में फोटोग्राफी का क्या स्टेटस है? जब फोटोग्राफी पहले थी, जिन दिनों मैं आया था, उस वक्त कुछ नहीं था। उस वक्त गिने चुने लोग थे जिनसे आप गाइडेंस मिलती थी। अभी मैं खुद भी इस काम में लगा हूँ कि कोई वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज करते हैं नए स्टूडेंट्स के लिए। बाहर से कोई फोटोग्राफर आता है, उसको इनवाइट करते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाइए। जैसे मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मैंने बच्चों को पढ़ाया फोटोग्राफी के बारे में। ये अब जो नए लड़के आ रहे हैं, ऑब्वियसली उनमें टैलेंट है, वो हमसे ज्यादा अच्छे बनेंगे क्योंकि वो बेसिक फोटोग्राफर बन के आ रहे हैं, वो फोटोग्राफी पढ़ के। कहीं लड़के जो अभी बाहर के मुल्कों में हैं, हमारे लड़के कश्मीरी लड़के, और जो फोटोग्राफी से रिलेटेड अवार्ड जीत कर बाहर के मुल्कों में गए हैं, स्टेटस इससे बेहतर स्टेटस क्या हो सकता है हमारे कश्मीर का। जो अभी तालिब इल्म जर्नलिज्म की दुनिया में या फोटोग्राफी की दुनिया में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह मशवरा देना चाहेंगे? कभी भी मैंने पहले ही कहा कि मैं किसी को नहीं रोकूंगा कि आप ना आए फील्ड में। आप आइए, फील्ड में आइए, यहाँ पे देखिए क्या होता है। और अगर आप फोटोग्राफी चूज करते हैं, आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, आप ये सोच लीजिए कि आपको कौन सी फोटोग्राफी करनी है, आप क्या करना चाहते हैं। क्या फोटोग्राफर वो होता है जो एक मैसेज कन्वे करता है, और आप लोग कौन सी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं और किन को करना चाहते हैं। हूँ कश्मीर को या कश्मीर के बाहर के मुल्कों को, और जो भी आए हम उनका खैर मकदम करेंगे इंशाल्लाह ताला। उन्हें किस तरह की तैयारियां करनी होगी इस दुनिया में आने के लिए? इसमें आने के लिए पहले तो उनको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। कोई भी चीज कवर करने के लिए जाएंगे, वहां पे 10 किस्म के लोग आपको मिलेंगे, और 10 किस्म के लोग आपको, कोई एक आपको थप्पड़ भी मार देगा, कोई एक आपको गाली भी देगा, कोई आपको गलत अल्फाज, और कोई आपको रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा करेगा। इस चीज में आपको पेशेंस चाहिए। इस फील्ड में आने के लिए पहले आपको पेशेंस अपनी बनानी है। दूसरा, आपको एक ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बन के आना है।
और तीसरा आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि डाउन टू अर्थ रह के बैठना है, तब कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने ये सोचा कि भाई मैं आया और छाया, ऐसा कभी नहीं होता है। सुनने में आया कि आप फोटोग्राफी के अलावा पोइट्री में भी इंटरेस्ट रखते हैं? मैं पोइट्री करता हूँ, मैं लिखता हूँ, और वो एक शेर मैंने लिखा है कि सुनने में आया है वो वापस आई है घर, सुनने में आया है वो वापस आई है घर, सुना ले जो आया उसका बिछड़ गया है घर, अब उसके हाल पूछूं या इसका ढूंढूं घर, दोनों से रिश्ता नजदीक का, वो सुबह का घर ये शाम का घर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज 4 अक्टूबर के रोज पूरी दुनिया में हैवानात का आलमी दिन मनाया जाता है। हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई सारी जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद आज दुनिया भर में किया गया। आपको याद ही होगा कि इस महीने की 2 तारीख को बापू यानी गांधी का जन्मदिन मनाया गया। इस हवाले से पूरे भारत में कई सारी तकरीबात का इनेकाद किया गया। क्या आपको मालूम है कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? जी हाँ, वर्ल्ड हैबिटेट डे। वर्ल्ड हैबिटेट डे के सिलसिले में सुनते हैं वसीम अब्दुल्ला की ये तहरीर। 17 दिसंबर 1985 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने एक करारदाद पास की जिसमें अक्टूबर की पहली सोमवार को वर्ल्ड हैबिटेट डे यानी आलमी रिहायशी दिन मनाने का ऐलान किया गया। इस सिलसिले में साल 2012 का मौजू था शहरी तब्दीली और तामीराती मौक़े। क्योंकि शहरों को तरक्की का इंजन कहा जाता है, ये शहरी हैं जहाँ एक इंसान अपने ख्वाबों को शर्मंदे ताबीर करता है, और अगर ऐसा कुछ हासिल ना हुआ तो फिर भी एक इंसान शहर में एक अच्छी और साफ सुथरी जिंदगी बसर करता है, एक छोटा या बड़ा ताजिर बनकर, सरकारी या गैर सरकारी मुलाजिम बनकर। इस सिलसिले में पूरी दुनिया में तकरीबात का इनेकाद किया गया। इधर वादी के साथ साथ मुल्क भर के तमाम बड़े और छोटे शहरों में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि शहरों को न सिर्फ तिजारती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाए बल्कि शहरों में हर किस्म की सहूलियत का बंदोबस्त किया जाए ताकि इन शहरों में इंसान अपनी जिंदगी आराम और बेहतर तरीके से बसर कर सके। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया गया कि न सिर्फ शहरों को बल्कि गाँवों को भी इस तेज रफ्तार तरक्की के दौर में पीछे न छोड़ा जाए। पेश कदम में हिस्सा लेने के लिए, अपनी कोई भी शिकायत दर्ज करने के लिए या अपनी कोई भी राय देने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं peshkdam@gmail.com पर। पेश कदम को आप फेसबुक पे भी सुन सकते हैं। फेसबुक पर डायरेक्ट सर्च कीजिए पेश कदम रेडियो क्लब। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। खत लिखने के लिए हमारा पता है इंचार्ज प्रोग्राम पेश कदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपुरा। जहेज की बिद्दत समाज में एक नासूर की तरह फैल रही है। इस बिद्दत की वजह से न जाने कितने घर उजड़ गए और कितनी जवान लड़कियां मौत की आगोश में चली गई। जहेज ना देने वाली लड़कियों को ससुराल वाले तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला करते हैं और उनका जीना हराम करते हैं। सुनते हैं बिलाल कुच्छे की ये तहरीर। जहेज की बिद्दत ने कश्मीर में न सिर्फ दर्जनों बहुओं को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया बल्कि कई एक को अपने ससुराल वालों ने मौत की आगोश में पहुंचा दिया। जबकि 2 लाख दोशीज़ाओं की शादियां इसलिए नहीं हो पा रही हैं कि उनके वालिदैन के पास जहेज देने के लिए सरमाया नहीं है और उनकी बेटियां न सिर्फ उन पर बोझ बन गई हैं बल्कि अपनी किस्मत पर भी खून के आंसू रो रही है। पिछले कई बरसों से कश्मीर में कई तरह की बिद्दात ने सगीर रुख इख्तियार करते हुए गरीब तबके की जिंदगियों को अजीरन बनाकर रख दिया है। करवट बदलती हुई इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर सिन्फ नाजुक हुई। इसको न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि हवस का शिकार भी हुई। मादा परस्ती के हुसूल ने इंसान को इतना अंधा बना दिया है कि इंसानियत, अदब और अखलाक अब बेमानी होकर रह गई हैं। सरमाया हासिल करने के लिए खून से हाथ रंगे जाते हैं। साल 2011 और 12 से कश्मीर में लगभग 1200 ऐसे वाक़ात सामने आए हैं जिनके दौरान ससुराल वालों ने अपनी बहुओं को सिर्फ इसलिए जलाने की कोशिश की या उन्हें कत्ल कर दिया कि उन्होंने अपने साथ जहेज नहीं लाया था। ऐसे गैर मामूली हादसात होने के वक्त समाजी, दीनी और सियासी ठेकेदार जरूर कागजी मिजाहिल दाग कर कौम को नसीहतें करते हैं और 9 दिन के बाद आई बात गई बात के मुतरादिफ सब कुछ भुला दिया जाता है। शहर व देहात में अइमा, मसाजिद, मजहबी ठेकेदार, समाजी कारकुन, सियासी पार्टियों के लीडरान सड़कों पर निकल आए और जज्बाती तकरीर की गई। फोरम तश्कील दिए गए। बेरहरवी, जहेज और दूसरी समाजी बिदात को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कौम के साथ वादे किए गए, लेकिन 1 माह के अंदर
अंदर सब कुछ दफन हो गया। ना तो किसी ने जहेज पर बात की और ना ही बेराह रवि को खत्म करने के लिए घर से बाहर निकली, जिसकी वजह से समाजी बिदात को फरोग मिला। और सितम ज़रीफी का ये आलम है कि रवा बरस में 10 ऐसे वाक़ात सामने आए जिनके दौरान ससुराल वालों ने अपनी बहू को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया कि उन्होंने अपने साथ बहुत कम जहेज साथ लाया था। पिछले 2 बरस के दौरान 350 मंगनियां सिर्फ इस वजह से टूट गई कि लड़के वाले जहेज का ज्यादा मुतालबा कर रहे थे और लड़की वालों के पास इतना सरमाया नहीं था कि वो इनकी मांग को पूरा कर सके। इस वक्त कश्मीर में 2 लाख के करीब दोशीज़ाओं की शादी सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही है कि इनके वालिदैन के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो अपनी बेटियों को जहेज साथ दे सके। समाजी और मजहबी ठेकेदार सिर्फ अपनी दुकानों को सजा रहे हैं, जबकि आइमा मसाजिद जुमे के दिन जन्नत जहन्नम का तबलीग करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर कौम पर बड़ा एहसान करते हैं। कानून भी इस सिलसिले में तब तक अपना काम नहीं कर सकता है जब तक कि न पूरी कौम जहेज की लानत को खत्म करने के लिए आगे आए। आजकल के दौर में आमदरफ्त की कई तरह के जराए हमारे पास दस्तयाब है, लेकिन जब हम कई साल पहले की बात करें तो टांगे के इस्तेमाल के दिनों की याद जरूर ताज़ा हो जाती है। इसी टांगे के हवाले से हमने अपने सामनीन से बात की हमारे आज के कथपिंड सेगमेंट में। समीर अहमद नजार रोजान वून तौर टांगस खसमित ब्रोट खसान टांगस वन खसान टांगस क्या तो वन मोसर सही टांगुक तक मजा गसान किलोमीटर 2-3 वन गाड़ी वाल तुलान क्या पता पे ब्रो वक्त आद टांगस खसान मदद वन मे नाम फातिमा टांगस खसान टांगस खसान तो सहूलियत गसान अति नीरन बाजार तान टांग सवार खसान तो वातान बाजार तान वंद या रेत कौल मगर आज गई टांग जन जुलाई वतन वन टांग सवारी कुन जाए नजर। मे नाम मोहम्मद लतीफ बस रोजान टांगस मजे बे मज खतर तहन आज गाड़ी पोल्यूशन गो यमो गाड़ियों एक्सीडेंट गई बच गई बाइकों पर खत्म इसलिए वन टांगस पे मजे सन बुजुर्ग तक टांगे इस्तेमाल करान क्या पे मजे एक्सीडेंट खत्म। मेरा नाम जसरा है, डिपार्टमेंट है CSE 5th सेम। टांगा राइड का जो आजकल हम फिर फोर्ड या बड़ी बड़ी फेयर कार्स में बैठ के उतना चाम नहीं होता जितना टांगे में। कि टांगा से जो सर वो एक नेचुरल फीलिंग होती है। आप टांगे में बैठ के साइड के व्यूज देखोगे, बाकी देखोगे, जो गाड़ी में पॉसिबल नहीं है। गाड़ी तो टांगा राइड था ही पीसफुल और चार्मिंग। मे नाम मुख्तार अहमद बस रोजान अवंतीपुरस मज ब्रोट टांगस मजे आज कल ड्रिंटी गसान न कुन टांग न कुन कह चीज टांगस मज टांगस खसान अत कुन सड़क कन नान अत खस जमीन दान जमीन शूबान इंसान सीनरी वुचान इंसान बे इंसान क्या तरावत फेरान दिलस गाड़ियों गो चीज गो पोल्यूशन बे करान ड्राइवरस अगर वो ये ठहर सह वन है चकन दुबई गाड़ी खसन ये तम खसान गाड़ी तो बेस फसान बोन अख पन पोस निवान बे खिड़की तुलान तो खिड़की त्रावान। इसके साथ ही पेश कदम का हमारा आज का शुमारा खत्म हुआ। हिना ताज, सजाद भट्ट और पेश कदम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश। पेश कदम। सुबह उम्मीदें ज़िया है, जामिया इस्लामिया, मशअले